National Intelligence Grid, a project that has been going on for more than 10 years now. The newspaper headlines claim that very soon this particular body is going to be operational and PM Modi will be launching this particular project very soon. Let us look at some of the headlines which are there. They say that National Intelligence Grid finally will be seeing light of the day. Indian PM Modi to launch National Intelligence Grid soon to fight terror. Now, with this particular set of news, it is important for all of us to understand what exactly is National Intelligence Grid, right? Let me talk about what happened in 2008. I am talking about the Mumbai terror attacks, which famously जिनको हम 26/11 attacks भी बोल देते हैं. 2008 में ये attacks carry out किए गए by an organization called लश्कर-ए-तैयबा. काफ़ी अच्छे से coordinated attacks थे ये, and at that time when these attacks were happening, we could clearly see the gap in the Indian security infrastructure. बहुत जगह हमने देखा lack of coordination हुई, lack of real time information हमें clearly देखने को मिली. Even if I talk about the idea behind this attack, which was given by David Headley, who was the mastermind behind these attacks, he had already traveled to India 8 times before the attacks actually happened. But उस time पे भी कहीं पे भी हमें कोई red flags नहीं मिले, कहीं पे भी हमारी security organizations ने किसी तरह के रेड फ्लैग्स रेज नहीं किए गए थे, राइट. सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट, वी क्लियरली वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है, मे बी इट इज़ नॉट गुड इनफ. मे बी हमारा सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके डिफरेंट एरियाज से. एंड उसी के बाद 2009 में इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया शुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर काम किया जाए, एनालाइज किया जाए डेटा को, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए. एंड दैट इज वेयर दिस particular project NatGrid was conceptualized. If I talk about the origin and background, definitely ये start किया गया था after the Mumbai attacks of 2008. 2009 में इसको start कर दिया गया था with initial funding of around 2800 crores, but उसके बाद इसके जो funding थी उसको बढ़ा दिया गया, budget को बढ़ा दिया गया, and it now stands at somewhere close to 3400 crores. What exactly is NatGrid? This is a project, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कुछ यूज़र एजेंसीज को डेटा प्रोवाइडर्स के साथ लिंक करने की बात कर रहे हैं. सो वी वांट टू लिंक द यूज़र एजेंसीज एंड द डेटा प्रोवाइडर्स. फॉर एग्जांपल, यूज़र एजेंसीज कैन बी इंटेलिजेंस एजेंसीज. फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकती है, रॉ हो सकती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो सकती है, DRI हो सकती है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. तो ये बेसिकली क्या है? These are several user agencies. CBI भी हो सकती है, NCB भी हो सकती है, right? All these are intelligence agencies which can use these data, right? तो ये user agencies हैं, but who will be the data providers? Data providers will be banks. Data providers will be police stations. Data providers will be airlines. Data providers will be several other institutions. For example, railways. For example, telecoms, right? So why telecom and airlines are also included? Because यहाँ पर पता चलना चाहिए कि अगर X, if there is a person called X, and if we believe that this person is involved in some kind of an illegal activity, we want all information regarding that person. उन्होंने लास्ट एयरलाइन कहाँ से बुक करी, उनके पास कौन सा वर्किंग नंबर है, किन लोगों से उनकी बातचीत चल रही है, क्या एग्जैक्टली प्लानिंग चल रही है. If I talk about these all people, David Headley, who was the mastermind behind the 26/11 attacks of 2008 in Mumbai, he had already bought several SIM cards in India while he was staying here. He had already booked hotels, in many parts of Mumbai, and तब भी कोई भी information जो है हमारे पास उस time पे available नहीं थी. इसलिए all of these organizations are now also being included. इन सब से भी information को लिया जाएगा. Now, अगर हम first phase की बात करें, in the first phase there are going to be 10 user agencies, 10 प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन लिस्टेड डाउन बाय दी गवर्नमेंट, और ये 10 ऑर्गेनाइजेशंस के पास इन सारे डेटा प्रोवाइडर्स से डेटा पहुंचेगा. अभी तक 21 डेटा प्रोवाइडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर आप देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर से भी डेटा जो है फेच किया जाएगा. एंड बैंकिंग सिस्टम्स को इंक्लूड करने का 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. फर्स्ट, it is not just, NatGrid is not just only going to control terrorism, it is also going to help in controlling financial crimes. economic offenses भी कंट्रोल करने में ये जो है NatGrid प्रोजेक्ट ये मदद करेगा. not only financial and terrorist activities, also अगर कहीं पे नारकोटिक्स का इशू आ जाता है,
कहीं पे ड्रग स्मगलिंग का, आर्म स्मगलिंग का, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जहां पर इन्वॉल्व होती है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रैकेट दिखता है, वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन will be furnished by these data providers which can be used by these user agencies. So एक basic जो intelligence cycle का फंडा होता है उसके ऊपर काम करने की प्लानिंग है. एक intelligence cycle is nothing but a simple cycle where you collect the data. आप डेटा को कलेक्ट करते हो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से, यू ट्राई टू प्रोसेस दैट डेटा एंड यू ट्राई टू देन एनालाइज. सो बेसिकली आप डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने का काम करते हो इंटेलिजेंस साइकिल के मदद से, एंड दैट एग्जैक्टली इज नेटग्रिड. एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारे सिस्टम्स के पास से डेटा आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एंड वहां से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाला जा रहा है. ये पूरा प्रोजेक्ट है नेटग्रिड का. द मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्स is going to be located in Delhi, but इनका एक data recovery center होगा, data recovery center which will be located in Bangalore, right? And since NatGrid का जो major agenda है, it is to control the internal security framework. Internal security framework के ऊपर काम करना है, इसलिए आप याद रख सकते हो कि it is attached to the Ministry of Home Affairs, right? So this is how NatGrid is going to work. Now, if I talk about the 10 user agencies and the 21 data providers, कौन-कौन से ये लोग हैं? Let me give you a brief idea in this particular slide. So if I talk about the user agencies, कौन use करने वाला है NatGrid को, right? First is IB, Intelligence Bureau. Then Research and Analysis Wing, RAW, CBI, DRI, Directorate of Revenue Intelligence, Enforcement Directorate, FIU, CBDT, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise and Customs, Directorate General of Central Excise and Intelligence and Narcotics Control Bureau. So जितने भी ये प्रीमियर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट? एंड इनके पास डेटा कहाँ से आने वाला है? Who is going to provide them with the data? There are 21 data providers which will be providing regular डेटा टू दीज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस. एंड यहाँ पर डेटा कहाँ से आने वाला है? इमिग्रेशन की तरफ से डेटा आने वाला है. इफ अ पर्सन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, तो कितनी जगह उनकी एंट्री हुई, कितनी बार उन्होंने देश को एग्जिट किया, कहाँ कहाँ पे उनका वीज़ा लगा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाएगी. क्या बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, कितनी बार ट्रांसफ़र किया, हाउ मच मनी वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड, what was the mobile number which they were using, call details क्या क्या थी, who are the people they have been regularly in touch with, if they have a vehicle registered in their name, तो उस vehicle registration की पूरी डिटेल, right? पासपोर्ट की पूरी डिटेल. Also recently there was a news that NatGrid ने MOU साइन किया है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ इन्होंने MOU साइन किया गया है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस MOU, NatGrid will now be getting information from more than 14,000 police stations across the country. So more than 14,000 पुलिस स्टेशंस को लिंक कर दिया जाएगा NatGrid के साथ, so that all the information with respect to FIRs will also be made available. So बहुत ही जल्दी पता चल पाएगा कि अगर कोई XYZ पर्सन है, if he is involved in a certain crime, क्या उसके ऊपर पहले भी कोई FIR है या किसी और स्टेट में किसी क्राइम करने के बाद वो रिलोकेट अगर किसी और में हो गए, तो वहाँ पर उनका ओवरऑल जो पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है XYZ पर्सन का, वो सारा का सारा इस पूरी इंफॉर्मेशन से समझ आ जाएगा. नॉट ओनली दैट, उनके पैन रिकॉर्ड्स को भी लिया जाएगा. ऑल्सो जो भी उनकी आधार के रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बाय फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज, वो सारी इंफॉर्मेशन को ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं. NatGrid is going to compile that entire organization or that entire data and is going to make available for all of these people to work on that, right? तो बहुत ही एक ज़बरदस्त ये काम होने वाला है, बहुत ही इंटेलिजेंट ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट होने वाला है. इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ NatGrid, हम इसको फेजेस में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट फेज विच इज़ गोइंग टू हैपन सून इज गोइंग टू have 10 user agencies and 21 service providers, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन अपनी क्लोज करी है. But these are not the only organizations which are going to be a part of NatGrid. They say that very soon in the later phases we will be adding 950 more organizations जहां से डेटा जो है इकट्ठा किया जाएगा. तो अभी तक तो सिर्फ 21 सर्विस प्रोवाइडर से ही डेटा को लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है. बट वेरी सून द नंबर ऑफ डेटा प्रोवाइडर्स विल बी इंक्रीज्ड, एंड फॉलोइंग दैट
there will be a time when more than 1000 organizations will be integrated into NatGrid. So all the organizations which will be, which are going to be relevant are going to provide information to NatGrid, so that अगर किसी भी illegal activity को nab करना है, किसी भी terrorist activity को रोकना है, उसके लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, राइट. द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इन 2008, ऐसी प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े, राइट. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस कि जो NatGrid है ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करने वाली है. फॉर एग्जांपल बिग डेटा एनालिटिक्स, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो जहां पे भी ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा, ऑटोमेटिकली देयर विल बी रेड फ्लैग्स विच विल बी रेज्ड, एंड उसके ऊपर काम कर सकती हैं आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, NIA, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस उनके ऊपर फिर काम करना शुरू कर सकती हैं. ऑल्सो अब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो विद NatGrid. अब कुछ टाइम पहले there was a news which said that NatGrid also wants to link social media accounts to central database, and this is where there was a debate which started, जहां पर बोला गया कि अगर इतना सारा डेटा तो ऑलरेडी मिल ही रहा है NatGrid को. So if I talk about a person who might be just a suspect, अभी तक उनको एक्यूज किया गया है, सिर्फ उनको प्रूव नहीं किया गया है कि वो गलत है या नहीं, बट उनका ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली इज विद दी गवर्नमेंट एजेंसीज. तो क्या ये एक इन्फ्रिंजमेंट है ऑन द राइट टू प्राइवेसी? ऐसी इंफॉर्मेशन तो आप ले ही रहे हो, एंड उसके बाद यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंटीग्रेट सोशल मीडिया इनटू NatGrid. क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसके ऊपर ये दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न विच इज देयर, एंड इसके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज रेज किए गए हैं. इफ आई टॉक अबाउट a particular problem, recently there was in news in December 2020, Delhi High Court ने एक नोटिस जो है वो जारी किया था, एंड सेंटर को बोला था, सेंटर को रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज स्टॉप डेटा कलेक्शन थ्रू CMS, NatGrid एंड नेत्र. एंड ये रीजन क्या है, एंड व्हाई डिड द हाई कोर्ट से दिस, इज बिकॉज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. We all know that there is no such data protection bill in place or data protection law in place. अभी के फिलहाल अगर देखा जाए तो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 2019 में, बट अभी तक भी इसको पास नहीं किया गया है. इस वजह से डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकती है, राइट. Also, Puttaswamy judgment of 2017, which was given by the Supreme Court, they clearly said that right to privacy is a fundamental right. Right? It is very important for all of us to know कि भाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि फंडामेंटल राइट है, एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा एज एन एसेंशियल फेसेट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी. राइट, तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आर्टिकल 21 के अंदर क्लियरली मैंशनड है, बट ये राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है NatGrid का प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पर कोई एक लाइन नहीं ड्रॉ हो रही. प्राइवेट इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से जो है यूज किया जा सकता है. नाउ वी ऑल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प सेव लाइव्स, राइट. दे आर गोइंग टू हेल्प save the country, but at the same time there can always be some people who have malified intentions. अगर आपकी किसी, if you are an officer who is working, let's say let's take an example in IB, and you have a personal grudge with against somebody, and you have access to information for that X person whom you have a grudge with, you can take out all that personal information and you can use that information in any way you want to, right? And that can be a clear infringement on the राइट टू प्राइवेसी. तो डेटा सिक्योरिटी बिल जब तक नहीं पास होता तब तक NatGrid को क्या लॉन्च करना चाहिए, इज व्हाट द रिपोर्ट्स आर सेइंग, इज व्हाट द पीपल आर सेइंग, एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि जब तक एक प्रॉपर डेटा सिक्योरिटी बिल नहीं होता लॉन्च, या नहीं पास होता, एक्ट नहीं बनता, तब तक इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए. ऑल्सो देयर इज अनदर इशू विच इज देयर विद रिस्पेक्ट टू NatGrid, विच इज दैट RTI जो है, राइट, RTI से exempted है NatGrid. So NatGrid is not under RTI. So मतलब if suppose a normal citizen wants to have some information कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्यों दी गई, ऐसे कोई भी सवाल आप NatGrid से नहीं कर सकते, because it is exempted under the subsection 2 of section 24 of NatGrid. So these are some concerning points which are there with respect to NatGrid. But if I look at the, or if we look at the holistic approach,
definitely this is something which is required, but the only thing which is, which the country or which the people should work on is on data security and privacy concerns. There should be a specific procedure which should be mentioned, right? If you want to have access to data, only in some cases those accesses or those things can be used, but not in every case, right? ऐसा होना चाहिए so that the citizens of the country also feel that their data is protected, their data is safe. हम काफ़ी जगह बात करते हैं डेटा कॉलोनाइजेशन की, एंड वी टॉक अबाउट सेवरल सोशल मीडिया जाइंट्स कि वो हमारे लोगों का डेटा जो है इन्फ्रिंज कर लेते हैं, वो हमारा डेटा जो है अपने लिए यूज़ कर लेते हैं. बट दिस कैन नाउ ऑल्सो बी डन बाय द गवर्नमेंट, राइट? एंड इस चीज़ को अच्छे से लोगों को समझाने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट देयर इज़ अ proper data protection bill in place, right? So this is all from my side about NatGrid. I hope I was able to give some interesting information with respect to this particular topic. I will catch you again very soon with the next topic on our YouTube channel, so stay tuned. Till next time, see you, take care, and bye bye.